नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। L&T एंड मेट्रो रेल ने कल अमीरपेट स्टेशन के पास सीलिंग का टुकड़ा गिरने से मर जाने वाली 28 साल मोनिका के लवाकिन को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि मोनिका के रिश्तेदारों के साथ आज बातचीत में यह समझौता तय पा गया। इसी दौरान हादसा का सख्त नोट लेते हुए वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने माहिर इंजीनियरों से हादसे की तहकीकात करवाने की हिदायत दी। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल को मशवरा दिया कि वो बेहतर हिफाजती इंतजाम करते हुए अपनी नेक नामी बरकरार रखें। TRS के MSc कन्ना प्रभाकर खानोसाज काउंसिल में चीफ व्हिप मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने आज लेजिस्लेटिव पार्टी के दफ्तर में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा महमूद अली, इंदिरा कर्ण रेड्डी, साबिक वजीर N नरसिम्हा रेड्डी और दीगर अरकान असम्बली व काउंसिल भी मौजूद थे। उन्होंने इस ओहदे पर तकर्रुर के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। శాసన మండలిలో జరిగేటువంటి అందరి సభ్యుల సమన్వయం, శాసన మండలి వ్యవహారాలకు సంబంధించినటువంటి సమన్వయం విషయంలో ఎటువంటి లోటుపాటు లేకుండా అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి సభ్యులను కూడా సమన్వయపరుస్తూ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్ని బాధ్యతగా ముందుకు తీసుకుపోయే విషయంలో మరి ఈ విప్పు బాధ్యతల్ని ఇంకా బాధ్యత పెంచుతుందని భావిస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శాసన మండలి సభ్యులు కావచ్చు, శాసనసభ్యులు కావచ్చు, ఈ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి, దాదాపు 5 దశాబ్దాల పాటు వెనుకబడ్డటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందడానికి అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి లెజిస్లేటర్స్ భాగస్వామ్యం కావాల్సినటువంటి 5 దశాబ్దాలు వెనుకబడ్డటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి ఇవాళ పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేస్తేనే తప్ప ఈ రాష్ట్రం భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలతో పోటీ పడదు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రతి నిమిషం వారి ఆలోచన, వారి కృషి, వారి పట్టుదల పేద వర్గాలను అభివృద్ధి చేయాలని, పేద వర్గాల కోసం పనిచేయాలనేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ లెజిస్లేటర్స్ పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ శాసన మండలి సభ్యులందరినీ కూడా సమన్వయం చేసేటువంటి బాధ్యత కావచ్చు, శాసన మండలిలో నా బాధ్యతని ఇంకా పెంచుకొని తద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు అప్పచెప్పినటువంటి ఈ బాధ్యతని ఇంకా జాగ్రత్తగా ఇదొక బాధ్యతగా భావిస్తూ భవిష్యత్తులో పార్టీ ప్రభుత్వం చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కావచ్చు, పార్టీ ఇచ్చేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలో నా భాగస్వామ్యం ఇదే పద్ధతిలో కొనసాగుతుందని తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చి తెలంగాణ ఉద్యమకారులందరినీ కూడా అనేక మందిని సందర్భానుసారంగా మరి అనేక మందికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. దాంట్లో భాగంగానే నాకు శాసనమండలి సభ్యుడిగా అవకాశం ఇచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు KTR గారు కార్యకర్తలు కూడా వెన్నుతట్టి పార్టీ కోసం పనిచేసేటువంటి బాధ్యతని ఎప్పటికప్పుడు భుజాల పైన పెడుతున్నటువంటి మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, అదేవిధంగా మా జిల్లా పార్టీ మా జిల్లా మంత్రివర్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారికి, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अहदेदारों का एक खसूसी इजलास आज सदरनशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि संगारेड्डी में कब्रिस्तान और मस्जिद कराची को सड़क की तोसी के बहाने सड़क में शामिल कर लिया जा रहा था, जिसकी इत्तला पाते ही फौरी CO को मुतहर्रिक कर दिया गया और इससे मुताल्लिक़ कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। उन्होंने जिला कलेक्टर और मुतअल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरगाहों, मसाजिद, आशुरखाने और कब्रस्तानों वगैरह जैसे हसास नौइयत के हामिल इमारतों और उनके राजा पर बेजा मदाखलत न करें, जिसकी वजह से
अनुदत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मोहम्मद सलीम ने मीडिया को नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि बालापुर में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व हसूल के लिए सीनियर एडवोकेट्स की खिदमत ली जा रही हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वक्फ बोर्ड में स्टाफ की शदीद किल्लत है और इसके लिए अनकरीब मुस्तकिल बुनियादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। ऑफिसर्स को बुलाए। संगारेड्डी में जो है मस्जिद को रोड वेंडिंग में मस्जिद ग्रेवयार्ड्स ले रहे थे, तो परसों रात में सीओ साहब को बोल के हम लोग इमीडिएट मस्जिद और ग्रेवयार्ड्स जो है ना रोकना बोल के हम लोग इमीडिएट वो एक्शन लेके रुकाए और उन लोगों को बुलाए और कलेक्टर को लेटर दे दिए कि ये अवार्ड कैसा पास करे हमारे बगैर परमिशन के बोल के। तो कलेक्टर भी रुका दिए उसको। कलेक्टर आरडीओ, आज आरडीओ भी आने वाले थे। आरडीओ कुछ उनकी मदर का कुछ प्रॉब्लम है, क्या है नहीं मालूम, तो उन्होंने नहीं आए। इंशाल्लाह जो है वहाँ पर कोई भी वही संगारेड्डी बोल के नहीं है, पूरे तेलंगाना स्टेट में हो या पूरे इंडिया में हो, मस्जिद, दरगाह, ग्रेवयार्ड्स और आशुरखाना, ये 4 चीज़ों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। रोड वेंडिंग भी है तो बाजू से चले आना रोड। अब मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ भी हो, बाजू से जाते ना भाई, सेंटर में आती आने तो नो प्रॉब्लम, मगर उसको तोड़ के आप जो है ना रोड वेंडिंग करेंगे तो पब्लिक खामोश नहीं बैठती, पब्लिक बिल्कुल फिसाद हो जाता है उससे। इससे जो है ना बहुत से दुश्वारियाँ होते, लिहाजा वो चीज़ छोड़ना बिल्कुल छोड़ के आप बाजू से काम कर लेना है। वो सर आप तो काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाज़ कामों पे एकदम लेजीनेस दिखाया जा रहा है। लेजीनेस क्या है, थोड़ा स्टाफ बालापुर में जो ऑलरेडी चल रहा है थोड़े नहीं अभी वो बालापुर के लिए भी हम लोग सीनियर एडवोकेट को रखे रोशनउद्दौला में। कल प्रकाश रेड्डी को अपॉइंट करें हम लोग। 4 शंबे को केस आ रहा, सीनियर एडवोकेट्स को रख के जहाँ भी हमारे बड़े प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल के बस का नहीं है, हम सीनियर एडवोकेट्स को अपॉइंट करके जो है ना हम वो केस को हासिल करेंगे और हमारी चीज़ हमको रहेंगी इंशाल्लाह। वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, क़यामत तक वफ़ रहती। अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके कोई बदमाशी करके करा तो टेम्परवरी कर सकता उन्हें। वफ़ प्रॉपर्टी क़यामत तक वफ़ रहती हो उसके। अब आजकल तो जो है ना कानून भी ऐसा है कि उसको रजिस्ट्री भी हम कैंसिल करा सकते हैं। हम कोर्ट आर्डर दिया सो है हमारे को, तो इंशाल्लाह जो है ना वो पहले के वैसा नहीं है। अब बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली जा रहे हैं। अभी वो कई ज़मीना जो है कम लीज पे दिए हुए थे उसको भी हम रिव्यू करके हमारे डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने के लिए हम लोग हर चीज़ देख रहे हैं अभी वो। तो इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द एक चीज़ हम लोग वॉच करके एक चीज़ को हासिल करेंगे हम लोग। मैं जब तक भी हूँ वक्फ बोर्ड में इंशाल्लाह वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपको बार इत्तला करने के बावजूद भी वहाँ पे मस्तान साहब को दरगाह में अभी भी मौजूद है, वहाँ पे इतनी धानियाँ हैं, आपको प्रूफ के साथ बता सकते हैं। कल मस्तान साहब को भी बुलाएंगे, कल बुला के नहीं बुला के दूसरों को अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड पर्सन है तो उन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह उनको भी वहाँ से बर्खास्त करने की ये करेंगे हम, क्योंकि गलत काम को तो किसको भी हम बर्दाश्त नहीं करते हम। अभी आप देखें आप कितने लोगों को मैं क्या बात करा क्या नहीं करा, क्योंकि हम पानी के भी रवादार नहीं है ना चाय के रवादार है। हम अल्लाह के वास्ते यहाँ खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह के वास्ते काम करेंगे। हम चेयरमैन रहो या ना रहो, इंशाल्लाह ताला लैंड ग्राबरों की तो बैंड बजाएंगे हम इंशाल्लाह, समझे। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मस्तान साहब की जो कंप्लेंट है उसमें आप उस पर एक्शन इमीडिएट क्यों नहीं लेते? बराबर इधर सुनो आप, मस्तान ने और कोई भी बड़ा आदमी भी है तो उस पर एक्शन लेते हैं हम, क्योंकि वफ़ एक्ट इतना पावरफुल है, सेंट्रल एक्ट ये, उसके तहत हम बराबर लेंगे। कोई भी गलत काम हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं किसको भी। और एक बात ये है सर, ये बंद करो न्यू जनरेशन को, बच्चों को अपॉइंट्स के लिए है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉयज़ नहीं है, एक जो अभी है वो लोगों को सस्पेंड किया गया है, फिर अब अगर कोई नहीं है तो फिर यहाँ पे काम कौन करेंगे? किसको सस्पेंड किया गया? तकरीबन लोग सस्पेंड है जो परमानेंट एम्प्लॉय है, तो टेम्पररी अभी किसी को नहीं है, तो अभी वक्फ बोर्ड में कम एम्प्लॉयज़ है, तो इसके बारे में आप कुछ सोचे? गलत काम करे सस्पेंड नहीं करे तो और उन लोगों की जरूरत बढ़ जाती और गलत काम करते। बोलने का मतलब सुनिए इधर आप, वही मतलब है, इधर सुनो इधर आप। 250 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अभी जो एम्प्लॉयज़ है वो अभी स्टाफ कम है, तो स्टाफ जब आपके पास नहीं रहेगा तो फिर काम कौन करेगा? नहीं देखो आप न्यू जनरेशन को अपॉइंट करने की सोच रहे हैं आप। बदमाश लोगों को रख के तो काम नहीं कर सकते, चोरों को रख के। जो अगर गलत करेंगे उसको बराबर उसको पनिशमेंट देंगे, उसको सज़ा देंगे हम बराबर उसको वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है। क्योंकि सही काम करो, सीधा तनख्वाह ले रहे कहीं की ले रहे, सही काम करने की ले रहे ना, तो गलत काम को तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सुने अब, और एम्प्लॉयज़ भी जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द थोड़े एम्प्लॉयज़ को भी हम लोग अपॉइंट करेंगे, पेपर में नोटिफिकेशन डाल के करके। ये थोड़ा असेंबली चल रही थी, थोड़ा सीएम साहब से मीटिंग करके एक 50 एम्प्लॉयज़ लेना ही लेना है हमारे को, डेली वेजेस पे हो या कंसिडर पे हो, कैसा भी लेंगे हम लोग।
अच्छे बच्चों को लेके जो ना उनको इनकरेज करके इंशाल्लाह उनको एक तो जॉब भी मिलेगा, दूसरी चीज़ काम भी चलेगा यहाँ पर। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंद्र नायक ने बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आदिवासियों और बंजारा तबके को मुहसिला तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 9.8 कर देने का तयख़ुन दिया है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि रियासती हाईकोर्ट ने भी आदिवासियों और बंजारा तबके को तहफ़्फ़ुज़ात देने की हिदायत दी थी। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नए कायमशुदा तांडा कबायली पंचायतों को फाजिल फंड्स फराहम करे और उन्हें बाख्तियार बनाए। रविंद्र नायक ने हजरा, नलगुंडा, रंगारेड्डी, मेहबूबनगर और वरंगल में कबायली लड़कियों के लिए सेंट्रल रेसिडेंशियल स्कूल कायम करने की भी मांग की। एक तो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और नेशनल SC/ST कमेटी के कमीशन के पूर्व मेंबर्स के हैसियत से हाल ही में भाजपा पार्टी में शामिल होने के बाद और शामिल होते समय हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जो नड्डा जी है, उनको हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किए थे जिसमें तेलंगाना राज्य में जो हालात है और जिसमें आदिवासियों की परिस्थिति के ऊपर, आदिवासियों की हालत के ऊपर इस मेमोरेंडम के जरिए हम बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट साहब को ये मेमोरेंडम देते हुए और यही मेमोरेंडम के जो है हमारे होम मंत्री अमित शाह जी को और पूजनीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने सबमिट किया। इस संदर्भ में इस मेमोरेंडम के अंदर जो स्टेट की हालत है, हम सबको मालूम है आज तेलंगाना गवर्नमेंट करीब 5.5 साल होने आ रहे हैं। जो वायदे उन्होंने किए थे अब तक कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। उल्टा जो है हमारा स्टेट घाटा में चल रहा। अभी बजट जो है, पहले बजट ज़्यादा था जब हम राज्य हमें मिला, आज जो है 2 लाख के करीब 2 लाख करोड़ रुपए का आज हमारे स्टेट के ऊपर कर्जा हुआ है। तो इस संदर्भ में हम कबायलों के यानी ट्राइबल्स की कुछ समस्याओं को हमारे केंद्र सरकार के सामने लाए, जिसमें 2011 के जो जनगणना के तहत इनको 9.8% जो है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारा हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया और हाईकोर्ट का डिसीजन देने के बावजूद भी हमारा केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने 2017 में एक डायरेक्शन दिया यहाँ के राज्य सरकार को कि भाई इनको जो ट्राइबल्स के लिए जो रिजर्वेशन देना है वो 9.8 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ कहा। लेकिन ये KCR की सरकार जो है आज इलेक्शन का ही काम करती है। इलेक्शन में कैसा जीता जाए, दूसरे पार्टी के लोगों को कैसा अपने पार्टी में मिलाया जाए, यही काम कर रहा है। यानी इस राज्य में डेवलपमेंट तो है ही नहीं। जब किसान मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं,
एक भी किसान के फैमिली को इन्होंने जाके परामर्श नहीं किया। लेकिन वो 4,000 8,000 बोल के जब इलेक्शन के समय जो बांटने का एक काम किया, जब किसान जो खेती उगाते हैं उसका जो है रेट, मार्केट रेट देनी चाहिए, उसके छोड़कर ये सरकार जो है ऐसे जो बांटते हैं, मिठाई का भी सब बांट रहे हैं। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, जब हम अमित शाह जी को जो मेमोरेंडम भेजे थे, इस मेमोरेंडम का भी हमें जवाब मिला। इसके जवाब में उनके तरफ से ये लेटर आया कि भाई हम जो आदिवासियों का जो शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन बढ़ाने का है, वो हम उसके इमीडिएटली हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये उनसे हमको आश्वासन मिला। तो इस संदर्भ में मैं तेलंगाना सरकार से कहना चाहता हूँ कि भाई एक नेशनल शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिस कॉरपोरेशन में 100 करोड़ों रुपये जो है पड़ा हुआ है यहाँ हमारा स्टेट के लिए, लेकिन ये सरकार ने, राज्य सरकार ने कोई नोडल एजेंसी नहीं बनाया, कोई स्कीम फॉर्मुलेट नहीं किया। इस वजह से वो पैसा वहाँ अटका हुआ है। लेकिन करीब 6 साल से, 5.5 साल से वो वहाँ का NSD FDC का फंड्स यहाँ लेने आने में असमर्थ रही हमारी केसीआर की सरकार। तो इस संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा जो 9.8% रिजर्वेशन का अमल और NSD FDC का फंड्स लाने का, और जहाँ जहाँ छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है कुछ जिलों में गरीबी के, गुर्बत की वजह से, जहाँ हमारा रंगारेड्डी जिला है, पूर्व रंगारेड्डी जिला, मेदक जिला और हमारे महबूबनगर, नलगोंडा आदि जिलों में जहाँ जहाँ ये औरत बच्चों को जो है मार दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस जगहों पर केंद्र सरकार को हम गुजारिश किए हैं, वहाँ पर ये लड़कियों के लिए आश्रम स्कूल, सेंट्रल आश्रम स्कूल बनाने के लिए भी हमने इस लेटर में हम रिक्वेस्ट किए हैं। और जो ट्राइबल का जो भाषा है गोर बोली, ये गोर बोली को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए भी हमने इसमें रिक्वेस्ट किया। तो इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार को, तेलंगाना सरकार को फौरन जो है हमें उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई सही काम नहीं कर रहे हैं। केवल जिनको जहाँ हमारे केसीआर साहब को जहाँ पैसे मिलते हैं, जो जहाँ घूस मिलता है, ऐसे ही कार्यक्रम ले रहे हैं। उदाहरण आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जिसका जो है ओरिजिनल एस्टिमेशन 38,000 करोड़, लेकिन आज जो है उसका एस्टिमेशन 1,25,000 करोड़ तक बढ़ा दिया। और इसी तरह जो है सेक्रेटरीट बिल्डिंग को डिसमेंटल करना चाहते हैं और असेंबली बिल्डिंग को डिसमेंटल करना चाहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, सुई नहीं है, नर्सेस नहीं है, स्टाफ नहीं है। लेकिन हमारे साहब जो है एक यहाँ एक नया कार्यक्रम, और कल आप देखिए जब US से गए, वहाँ हमारा सर जो है, हर भारतीय का सर जो है गर्व से ऊपर उठा, क्योंकि उन्होंने जो देश में हमारा दुनिया में भारतवर्ष को भी चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ खड़ा करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, उसके साथ हमारे कबायली लोग हैं। पूरा हिंदुस्तान आज जो है मोदी के साथ, मोदी के नाम से नारे लग रहे हैं। जिले खम्मम के मोजे गोलागुड्डम में एक हामिला खातून और उसकी सास उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी कार जिसमें वो सफर कर रहे थे फिसलकर नागार्जुना सागर कैनाल में गिर गई। महलूकिन की शिनाख्त जिले महबूबाबाद की 28 साल पी स्वाति और 48 साल पी इंदिरा की हैसियत से की गई। पुलिस के मुताबिक स्वाति अपने शौहर महिपाल रेड्डी और सास इंदिरा के हमरा खम्मम में एक डॉक्टर के पास तिबी मुआयना करके वापस हो रहे थे कि उन्होंने नागार्जुना सागर कैनाल के पास कुछ देर ठहरने का फैसला किया। महिपाल अपनी कार को रिवर्स ले रहा था कि कार फिसलकर कैनाल में गिर पड़ी। महिपाल कार के शीशे तोड़कर बचकर निकलने में कामयाब हो गया, जबकि दोनों गुरखाब हो गए। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जिले कामारेड्डी के पटलम मंडल में कल रात खड़ी लारी को एक दूसरी लारी ने पीछे से टक्कर दे दी। इसके नतीजे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 शदीद तौर पर जख्मी हुए। लारी ड्राइवर 39 साल गायकवाड़ और 29 साल क्लीनर शेख रिजवान हादसे के बाद गाड़ी बना रहे थे कि तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी। दूसरी लारी का ड्राइवर सतीश और क्लीनर मंजीत शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बच्चों की ख्वाहिश में एक लावालिद जोड़े ने एक 15 माह की बच्ची का अगवा कर लिया, लेकिन वो दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस भोंगिर के नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कचरा चुनने वाले पी माधो और जी राजू ने, जो पहले बीबी नगर में रहते थे, एलबी नगर मुस्तकिल हो गए। उन्होंने 15 सितंबर को बीबी नगर में ज्योति नामी खातून की लड़की का अगवा कर लिया था। पुलिस ने मगविया लड़की को उसकी मां के हवाले कर दिया। जिले संगारेड्डी में अमीनपुर लेक के पास एक खतरनाक सांप नजर आया, जो पहली बार 30 साल कबल 1976 में नागार्जुना सागर के पास नजर आया था। इसके बाद इसको नागार्जुना सागर रेसर का नाम दे दिया गया। 2016 में तिरुपति के करीब शीशाचलम जंगलात में भी ये सांप पाया गया था। 2013 में इसी ब्रीड का एक सांप किले गोलकुंडा में भी दिखाई दिया था। सीपीएल अंबरपेट की एक टाटा सोमो कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा कल रात देर गए दरगाह यूसुफन नामपल्ली के पास पेश आया। इसमें एक एएसआई यूसुफ खान जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कार के टायर का राड अचानक निकल पड़ा था। ड्राइवर की दानिशमंदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में बल्दिया के हुक्काम ने दरियाए कृष्णा के साहिल पर गैर मजाज तामीरात की निदामी कार्रवाई शुरू कर दी है और अब उसका निशाना रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह भी हो सकती है। मौजे इंद्रावली में हुक्काम ने चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह के करीब तेलुगु देशम के लीडर की इमलाक को मुनज़्ज़म कर दिया। पुलिस की निगरानी में आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वर्करों ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडर पी कोटेश्वरा की इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। अहदेदारों ने बताया कि ये इमारत बगैर इजाजत के तामीर की गई थी। चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह को नोटिस देने के 2 दिन बाद ये कार्रवाई अमल में आई है। हुक्काम ने 24 तामीराती इमारतों को नोटिस जारी की है। इनके मुजमला 5 इमारतें जो तामीर की गई हैं उन्हें सरे से गलत गैर कानूनी करार दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जून में नायडू की रिहाइशगाह के बाजू एक सरकारी बंगला प्रजा वेदिका को मुनज़्ज़म कर दिया गया था। नायडू 2016 में हैदराबाद से मुंतकली के बाद इस रिहाइशगाह में रह रहे थे। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि नायडू खुद एक गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई मकान में रह रहे थे। ताहम तेलुगु देशम का कहना है कि हुकूमत इंतकामी सियासत के तहत ये कार्रवाइयाँ कर रही है। एबीवीपी के हजारों कारकुनों ने आज कलकत्ता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जबरन दाखिले की कोशिश की, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 दिन कबल मरकजी वजीर बाबू सुप्रिया के साथ यूनिवर्सिटी में बदतमीजी के वाक़े के खिलाफ एबीवीपी एहतजाज के लिए रैली निकाली थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में होडी मोडी इवेंट में शिरकत के बाद, जिसमें 50,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे, रात देर गए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। इससे कबल वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कई आलमी कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के सफ़ीर सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 65 से ज़ायद सरबराहान ममलकत और वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात का प्रोग्राम रखते हैं। वो पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से माहौलियात पर मुनक़िद होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उनके दीगर प्रोग्राम भी न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न, जर्मन की चांसलर अंजेला मार्केल से मुलाकात भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, जो अमेरिका के एक हफ्ता तवील दौरे पर हैं, कल ह्यूस्टन में
हिंदुस्तानियों के मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकात की। उन्होंने फ़िरक़े दाऊदी बोहरा के एक वफ़द से भी बातचीत की। वफ़द ने, जिनमें बुरखापोश ख़वातीन भी शामिल थीं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़दामात की सिताइश की और उनके दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमले और अमरीका और चीन के माबैन तिजारती जंग के नतीजे में मुल्क में आज मुसलसल 7वीं मरतबा भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये 91 पैसे फी लीटर, कलकत्ता में 76 रुपये 60 पैसे, मुंबई में 72 रुपये 57 पैसे और चेन्नई में 76 रुपये 83 पैसे रही। जबकि डीजल की कीमत दिल्ली में 66 रुपये 92 पैसे, कलकत्ता में 72 रुपये 35 पैसे, मुंबई में 70 रुपये 22 पैसे और चेन्नई में 70 रुपये 76 पैसे रही। महाराष्ट्र के जिले थाने में पुलिस ने एक 7 साल लड़की की असमत रेजी के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के नाम नवीन जसोजा, अजय धेयारे और विक्रम पुरोहित बताए गए। ये वाकया 19 सितंबर को उस वक्त पेश आया था जब एक 7 साल लड़की स्कूल से घर वापस हो रही थी। मुलजिमीन ने उसे मखदूश इमारत में ले आकर उसकी असमत रेजी की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका आए हुए हैं, आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी दीगर मसरूफियत में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और तुर्की के सदर तैयब अर्दगान से मुलाकात भी शामिल है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के खिताब के लिए आज न्यूयॉर्क पहुँच गई। वो 8 दिन अमेरिका में क़याम करेंगी। उनका खिताब 27 सितंबर को मुकर्रर है। उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस इजलास से खिताब करेंगे। बांग्लादेश के सफ़ीर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन और अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश के मंदूब मसूद बिन मोहम्मद ने उनका खैर मकदम किया। शेख हसीना जो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक हिंदुस्तान का दौरा करने वाली हैं, न्यूयॉर्क में अपने क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।